Hello everyone, myself Kailash, and today we will discuss about motion in straight line. So first of all we will define about motion and rest. I think rest and motion, these are relative quantities. So rest, what is rest? If we call about rest, then any body which does not changes its position with respect to time is known as rest. For example, I will standing here continuously in observation of a second person. I cannot move any single inch. So this is rest. Rest means not that I am changing my position with every moment of time and after a time interval I am standing here. I cannot change. This is not rest. So rest का मतलब यह है कि एक ऐसा बॉडी जो कि समय के साथ, समय के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन नहीं चेंज करे, उसको हम रेस्ट कहते हैं। और मोशन क्या है? तो जब कोई बॉडी समय के साथ अपना पोजीशन चेंज करता है तो उसको हम कहते हैं मोशन या गति। जैसे कि एक पॉइंट है ए, अब ये जो ए है यह लगातार हम इसको ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि ए अपना पोजीशन चेंज कर ही नहीं रहा है, तो ये क्या है? रेस्ट पे। लेकिन मोशन ये कब हो जाएगा? जब हम देखें कि ए जो है ऐसे घूमते हुए गया, यहाँ बी तक पहुंचा, तो समय के साथ साथ ए ने अपना पोजीशन चेंज किया, बी तक पहुंचा, और उसके बाद ये हो सकता है कि फिर ये यहां से आके इसी पॉइंट पे आ जाए, तो फिर यहां से भी इसने मोशन किया। रेस्ट और मोशन में एक क्लियर डिफरेंस होना चाहिए कि टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि पोजीशन तो चेंज नहीं हुआ, ऐसा पॉसिबल है कि पोजीशन चेंज नहीं होता है फिर भी मोशन हो जाता है। उसका बेस्ट एग्जांपल यही है। तो इसलिए पोजीशन चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। जस्ट एक सेकंड पहले देखेंगे तो कहीं और रहा होगा, हो सकता है यहाँ ये रहा होगा, तो ये तो मोशन में है। तो रेस्ट क्या है कि समय के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो मोशन है, और अगर पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है तो रेस्ट है। अब हम आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज हैं जो मेजर की जाती हैं, उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, जैसे कि डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, ये सब चीज़ें फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार की होती हैं, एक है वेक्टर और एक है स्केलर। सो व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज, एंड vector quantity is represented by bold letter or arrow is it. For example, this is vector quantity A. So vector quantity is what? Those quantities which have having magnitude as well as direction, and it is represented by a letter having arrow on it, then it is a vector quantity. For example, displacement, force, velocity, all these are vector quantities. Acceleration, torque, momentum, these are all vector quantities. But scalar quantities having only magnitude, those quantities which have only magnitude is known as scalar quantities. For example, speed, distance, work. So these are scalar quantity. Yet scalar quantity is represented by just a letter. Simple.
So representation is normal. If we define speed, then it's simply v. This is speed. And if we make it vector quantity, then we will place a arrow on it. So it becomes velocity. So this is basic difference of representation of scalar and vector quantities. Now, if we call about magnitude, then magnitude has two components. First one is numerical value and second one is unit. For example, if we call a distance 5 meter, then in 5 meter, 5 is numerical value and meter is unit of length. 5 meter per second. 5 is numerical value and meter per second is unit of speed or velocity. And minus 3 Newton, minus 3 is numerical value and Newton is unit of force. Here I have represented minus, so in vector quantity plus and minus generally represent directions. We will discuss about later. So this is magnitude. Now we will define displacement. As in example we have mentioned displacement and distance. So what is basic difference between displacement and distance? So first one is displacement. It is simply the smallest distance or path length between 2 points having a specific direction is known as displacement. Smallest path length between 2 points having a specific direction is known as displacement. But in case of distance, total path length covered during the motion is known as distance. But the displacement and distance having same physical unit, SI unit is meter, and other units are centimeter and different a lot of units. Now we will see the difference between displacement and distance by an example. So this is point A and this is point B. If we call displacement, this is straight line and minimum path difference between this. For example, we call a vector A. Vector A having direction from A to B, and we call another quantity vector B. And vector B having same numerical value but direction is just opposite. So these are different vectors. Although their magnitude is same, but the direction is different. Now, if we call about this distance, for example, this is distance is what? If we go from this, or we can go distance. So there are infinite direction by which we can go from A to B, and in every case distance is different. If we go from this to this, distance is something, or path length during motion is something, from this to this something. For example, from this to this 10 meter, and we move this side, it may be 15 meter, this side it may be 18 meter, this zigzag
zigzag motion, maybe 100 meter. So in same condition, although the displacement is same, but distance can be different. Or so sometime distance and displacement must be equal, but in maximum conditions distance is always greater than displacement. So this is basic difference between distance and displacement. Now we will discuss about speed. Speed क्या है? तो rate of change of distance with respect to time speed होता है, और velocity क्या होता है? तो rate of change of displacement with respect to time. ये क्या है? Displacement है. अभी यहाँ पे मैं साधारण भाषा में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहा हूँ. पिछले वीडियो में मैंने जैसा बताया कि डिस्टेंस का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, बट डिस्प्लेसमेंट का स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है. तो स्पीड को हम क्या कह सकते हैं? सिंपली डिस्टेंस अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को हम स्पीड कह सकते हैं. लेकिन जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा. स्पीड और वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट है वो सेम होता है, मीटर सेकेंड. स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या होता है? तो डायरेक्शन का अंतर. स्पीड का डायरेक्शन डिफाइंड नहीं, बट वेलोसिटी का डायरेक्शन डिफाइंड है. स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जो भी स्केलर क्वांटिटी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा. वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. एक्सीलरेशन, तो ये तो स्पीड और वेलोसिटी तक था. अब आती है बात एक्सीलरेशन पे. एक्सीलरेशन को समझाने से पहले हम एक बात क्लियर करना चाहते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे कि हमने कहा रेस्ट या मोशन, तो उसमें क्या हो गया कि टाइम के साथ हम जो चल रहे हैं, जो हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है, तो वो मोशन हो जाएगा. जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे हम पोजीशन चेंज करेंगे और उसको हम कहें कि ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है. लेकिन अगर हमारा मोशन को हम एक टाइम इंटरवल में डिफाइन करें कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो ये एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो हमारा डिस्टेंस है या जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या डिफाइन करेगा? या तो स्पीड डिफाइन करेगा या फिर वेलोसिटी. तो टाइम के साथ साथ हमने डिस्टेंस चेंज किया या डिस्प्लेसमेंट चेंज किया तो स्पीड या वेलोसिटी डिफाइन कर देगा. लेकिन अगर हम मोशन करते जा रहे हैं और अब हमारा फोकस किस पे रहेगा? अब ये फोकस, एक बात तो है कि जब हम मोशन करेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस चेंज होगा. लेकिन हम अब फोकस इस बात पे करेंगे कि सेम हर समय पे हम अपना वेलोसिटी और स्पीड देखेंगे, नोट करेंगे. तो हम ये पाएंगे कि अगर टाइम के साथ साथ स्पीड और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो उस केस को हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी. लेकिन अगर टाइम के साथ साथ स्पीड या वेलोसिटी चेंज हो रहा है तब एक नए क्वांटिटी को नाम दिया जाता है जिसका नाम होता है एक्सीलरेशन. तो एक्सीलरेशन क्या है? टाइम के साथ स्पीड का जो चेंज है और उस चेंज का जो रेट है वही एक्सीलरेशन होता है. सो व्हाट इज एक्सीलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन. और रिटार्डेशन क्या है? तो रिटार्डेशन, देखो, जो एक्सीलरेशन होता है वह माना जाता है कि हमेशा पॉजिटिव है, बट रिटार्डेशन का मतलब है कि जो स्पीड है वो लगातार घटेगा ही घटेगा. तो इसको एक तरीके से नेगेटिव एक्सीलरेशन भी कहते हैं, या फिर रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या नेगेटिव एक्सीलरेशन. और एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन का जो एसआई यूनिट है वो मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कुछ फार्मूले हैं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी और टाइम इंटरवल, जैसा कि मैंने अभी बताया, और एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की केस में क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये कुछ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, टाइम, स्पीड, एक्सीलरेशन, इन सब के बारे में है।